welcome. You're watching the News Hour Agenda. I'm Padmaja Joshi. Over the last 24 hours, the Madhya Pradesh government has been on an overdrive. They say they are acting against people who were involved in stone pelting against a Ram Navami procession in Khargone. 50 illegal structures have been razed and more than 80 people have been arrested. The state government additionally has also said that any damage caused to public and private property during that violence on Ram Navami will be recovered from the rioters. पत्थर फेंकने वाले भूल गए कि ये मध्य प्रदेश है और जहां से पत्थर आए हैं वो घर अब पत्थर के मलबों में तब्दील हो जाएंगे। ये मध्य प्रदेश है, यहाँ शांति भंग हम किसी को भी नहीं करने देंगे। 77 लोग गिरफ्तार भी हो चुके हैं और तह तक हम आज पहुंच जाएंगे। ये जो लोग टुकड़े टुकड़े गैंग की स्लीपर सेल है ना, ये वो है। राहुल गांधी सबसे पहले गए थे, आपने देखा होगा, नारे लगे थे जेएनयू। एक ट्वीट नहीं आया करौली की घटना पे, उनकी सरकार थी कांग्रेस की, एक ट्वीट नहीं आया आज तक, एक बार निंदा नहीं की उन्होंने। ये वही क्रोनोलॉजी चली आ रही है। ये 5 राज्यों की जो हार है ना, वो उकसाने का काम कर रही। कैसे शांति देश की भंग हो, सिर्फ एक ही दिशा में बढ़ रहा है इसका ध्यान। दंगाइयों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी है। आज सवेरे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह ने जो ट्वीट किया धार्मिक स्थल पर झंडा फहराने का, वो फोटो मध्य प्रदेश का नहीं है। श्री दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश में धार्मिक उन्माद फैलाने का षड्यंत्र रचा है। प्रदेश को दंगों की आग में झोंकने की साजिश की है और मेरे प्रदेश में दंगा फैलाने की कोई साजिश करेगा तो वो कोई भी हो, मैं बर्दाश्त। Now, even as the government says they are only implementing the law, the bulldozer is only acting against those who were involved in violence. Both the Congress and the AIMIM today united to call it not just an illegal act, but one that was directed only at Muslims and was guided by hate and Islamophobia. In fact, the AIMIM chief today, while speaking to me, said that this is a conspiracy of the Sangh to make sure that the country is up in flames and the act of the Madhya Pradesh government is in violation of the Geneva Convention. The hate and hate perpetrated against the Muslim minority is consistent with the ideology of Sangh Parivar. And I happened to read a book wherein Guru Golwarkar, the Sar Sanchalak himself, has said that he was the one who started these procession and he was the one who took this dhol in his hand and started beating it when this procession started in front of a masjid. So this is very consistent. And whatever has happened, those statements which have been made in front of the police through loudspeakers, what does that tell the whole country? You know, because these people have been emboldened. These people know for sure that the government of the day is there to protect them. Yes, you might question me, what about Rajasthan? What about Jharkhand? Yes, Sangh Parivar is still prevalent over there. No one can deny that fact. Under what law can you demolish a house, assuming that they are right for a while, which they are not right? Under what law? You are violating not only our Indian law, but you are also violating the Geneva Convention. How can you give a collective punishment to the whole community just because they say that stone pelting happened? Then why do we have courts? Why do we have the police? If the government of the day becomes the judge and jury, then what will happen to rule of law? भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में नफरत और दहशत का बुलडोजर चला रही है। बुलडोजर चलाना है तो महंगाई पर चलाइए, बुलडोजर बेरोजगारी पर चलाइए, बुलडोजर भेदभाव और समाज में दंगे करने वाले लोगों पर चलाइए, बुलडोजर चलाना है तो पेट्रोल डीजल की कीमतों पर चलाइए, गैस की कीमतों पर बुलडोजर चलाइए, सीएनजी पीएनजी की बढ़ती कीमतों पर बुलडोजर चलाइए। बुलडोजर चलाकर आप मुद्दों को भटका नहीं सकते। धन्यवाद।
You're watching the News Hour at 10, debate number 1 on Times Now, Super Prime Time. Acharya Pramod Kishan, leader of the Congress, is with us along with Syed Aseem Waqar, national spokesperson AIMIM, Shri Raj Nair, national spokesperson Vishwa Hindu Parishad, and Medical Education Minister of Madhya Pradesh, Vishwas Sarang, to whom I have to ask the first question. Vishwas Sarang ji, सीधा आपके ऊपर इल्जाम है कि बुलडोजर बहाना है, मुसलमान निशाना है। देखिए पद्मजा जी, ये जो इल्जाम लगा रहे हैं वो तुष्टीकरण की भावना से ओतप्रोत होकर ये बात कर रहे हैं। दंगाई कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, उसको मध्य प्रदेश में बख्शा नहीं जाएगा। और वैसे भी दंगा करने वाला गुंडा उसका धर्म नहीं होता। ये बातें करने वाले लोग अराजकता फैलाना चाहते हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि डिस्कशन या ये डिबेट इस बात पर नहीं हो रही कि पत्थर क्यों चले, ये इस बात पर हो रही है पत्थर चलाने वालों पर कार्रवाई क्यों हुई। अरे ये रूल ऑफ लॉ, ये कोई कांग्रेस की सरकार नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत मध्य प्रदेश में नहीं मिलेगी। आप रामनवमी के जुलूस पर बिना किसी बात के पथरावबाजी करते हैं। और जहां तक ओबीसी कह रहे हैं कि ये किस रूल के अंतर्गत है, तो पद्मजा जी मैं बताना चाहता हूं, मध्य प्रदेश में हम कानून के तहत कार्रवाई कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में कानून है प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड देयर रिकवरी, ये हमारा कानून है। हम केवल ये तोड़ ही नहीं रहा है। जैसा आपने अपने प्रोग्राम की शुरुआत में कहा कि यदि पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी यदि डैमेज हुई है तो उसकी भरपाई भी दंगाइयों से तो आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कितने हिंदुओं के मकान तोड़े। ऐसा तो नहीं है कि मध्य प्रदेश में सिर्फ मुसलमान ही लॉ ब्रेक करते हैं, कुछ हिंदू भी रहे होंगे। पद्मजा जी आपने बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछा। आप उठाकर देखिए, पिछले 1 महीने में एक हिंदू परिवार ने एक छोटी बच्ची के साथ रेप किया, उसका भी मकान तोड़ा गया। ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। आप बोलेंगे तो मैं उसका नाम भी बता दूंगा। देखिए मध्य प्रदेश में कोई भी कानून हाथ में देगा, कोई भी माफिया, कोई भी गुंडा होगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। चलिए सैयद असीम वकार, मुसलमानों पे नहीं, माफिया पे, क्रिमिनल्स पे, वैंडल्स पे, पत्थरबाजों पर चलेगा बुलडोजर। फिर आप ये क्यों कह रहे हैं ओवैसी साहब कि मुसलमानों को टॉर्चर करने में कुछ सैडिस्टिक प्लेजर मिल रहा है सरकार को? जो गलत करेगा बुलडोजर चलेगा। सैयद असीम वकार, ये पद्मजा जी देखिए पद्मजा जी, सैयद असीम वकार से पूछ लेते हैं। सैयद असीम वकार जी, देखिए पद्मजा जी, सबसे जो एक अचंभित करने वाली बात है वो ये है कि जब जुलूस निकले तो पुलिस ने परमिशन दी, पुलिस साथ में होगी। ये पहली बार मैं देख रहा हूं कि दंगे हुए जुलूस में डिबेट हो रही है, सब कुछ दिखा रहे हैं, लेकिन जो जुलूस निकले हैं आप लोग वो जुलूस के वीडियो नहीं दिखा रहे हैं, ना पुलिस वीडियो जारी कर रही है। आप जानते सब हैं आप लोग, ऐसा नहीं कि आप अनजान लोग हैं। नहीं, जुलूस के बाद जो पत्थरबाजी हुई है उसके वीडियो टीवी पे नहीं दिखा रहे हैं। पता नहीं आपको दिख पा रहा है कि नहीं दिख पा रहा है। अभी सामने है 2 अप्रैल का वीडियो, पत्थर मारे जा रहे हैं। सुनिए। अच्छा, अरे मोहतरमा बुरा मत मना कीजिए। मैं बुरा क्यों मानूंगी? मना कीजिए। आपने फरमाइश की कि वीडियो दिखाइए, वीडियो हमने चला दिया। पूरी आने दिया कीजिए। सुनिए, नारे कौन से लग रहे हैं? कौन से नारे कौन से लग रहे हैं? कौन से? क्या सरकार उन नारों को जानती है, नहीं जानती है? कई जगह नारे लगे, कौन से नारे कोई कह रहा है कि जो राम का नाम नहीं लेगा उसको भगाया जाएगा, कोई गाने गा रहा है इस तरह के, ठीक है ना। और खाली एक जगह की बात नहीं है, ये कई जगह की बात हुई है, कई जगह ऐसा मध्य प्रदेश में भड़काऊ नारे लगे। दूसरी बात, आप यहां बैठकर आप कह रहे हैं भड़काऊ नारे लगे हैं मध्य प्रदेश में। मंत्री जी से मैं पूछ रहा हूं, हाँ मंत्री जी से मैं पूछ रहा हूं, मैं कह तो बहुत कुछ रहा हूं, मंत्री जी से मैं पूछ रहा हूं, मंत्री जी आपके यहाँ हाईकोर्ट भी होगा, हाईकोर्ट में जजेस भी होंगे, आपके यहाँ लोअर कोर्ट भी होगा, सेशन भी होगा, उसमें जब आप कोई अपराधी गिरफ्तार करते होंगे तो मुकदमा होता होगा, पुलिस मुकदमा करती होगी, फिर वो मुकदमा करके जज साहब के सामने पेश करते होंगे, फिर वहां प्रूफ करते होंगे कि जज साहब फैसला करते होंगे कि ये अपराधी है या नहीं है। ये आप लोगों ने ये कैसे चेंज कर दिया सिस्टम कि जज साहब घर बैठे
जज साहब घर बैठे और सारा फैसला पुलिस कर लेगी, पुलिस तय कर देगी कि ये अपराधी है, इसने पत्थर चलाए, इसने नहीं चलाए। विश्वास सारंग जी, पहले उसको तो तो ये आप घर भी बताइए तोड़ कि सैयद हसीम वकार कह रहे हैं जिन्होंने भड़काऊ मतलब आप नारे क्या- लगाए आप ये उनके चाहते घर हैं- गिराए आपने, जिन्होंने देखिए, मुसलमानों सबसे पहले को तो मैं ये भड़काया स्पष्ट करना उनके चाहता ऊपर हूं। घर बुलडोजर चलाया। सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं, जिस रामनवमी के जुलूस में ये पथराव हुआ वहां कोई अनर्गल बात नहीं हुई थी, वहां कोई गलत स्लोगन नहीं थे, वहां कोई हिंदुओं की ओर से कोई गलत नारे नहीं लगाए गए थे। ये केवल इस बात को ट्विस्ट करने के लिए बातें कर रहे हैं तो नहीं चलेगा। अब ये सैयद जी इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं हाई कोर्ट की और लोअर कोर्ट की और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, तो मैं ये बताना चाहता हूं जो भी मध्य प्रदेश में हो रहा है रूल ऑफ लॉ के तहत हो रहा है। हाँ, हमारे यहाँ हाई कोर्ट भी है, पर ओबीसी जैसे बिना पढ़े लिखे वकील नहीं है जो बिना किसी बात के हर मामले में केवल हिंदू मुस्लिम करते हैं, अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए मुसलमान लोगों की को पार्टी बनाते हैं। देखिए पद्मनाथ जी, इन सब एपिसोड से यदि नुकसान किसी का होता है तो वो इस देश के मुसलमान का होता है। वकार साहब, यहाँ पे तो सीधे आपकी बात को खंडन किया जा रहा है, कोई नारे वारे नहीं लगे, ये आप सिर्फ भटका रहे हैं। मंत्री साहब ये कह रहे हैं कि वहां पर प्रोसेशन जा रहा था, पत्थर मारा, बुलडोजर चला, उसमें आप कोई भड़काऊ नारों की बात ना करें। देखिए कितनी बढ़िया बात मंत्री जी ने कही। देखिए मंत्री जी ने कितनी बढ़िया बात कही। इंग्लैंड के कॉलेज से, जहां बड़े बड़े हिंदुस्तान के जो टॉप मोस्ट बैरिस्टर जो पढ़ के आए थे, उस कॉलेज से, इंग्लैंड के उस कॉलेज से पढ़े हुए आदमी को मंत्री जी कह रहे हैं ये गैर पढ़े लिखे वकील। और ये मंत्री जी खुद इनके मुख्यमंत्री जी चांद पर से पढ़ के आए थे। पद्मनाथ जी, मंगल ग्रह में उनका पढ़ जो के आए हैं। एटीट्यूड है वो पढ़े लिखों जैसा नहीं है। हाँ, उनका मैं समझ गया, मैं समझ गया आपकी अकल सर। वो हो सकता है बैरिस्टर आपका व्यवहार है, पर वो संस्कार सीख के नहीं आए। दिक्कत यही आ रही है, वो संस्कार सीख के आते तो वो इस तरह की बातें नहीं करते। मुझे अच्छा लगता आज ओबीसी जी बोलते हैं कि जो पत्थर चला रहा है वो गैर कानूनी है। आप पत्थर चलाने की बात को शेल्टर कर रहे हैं और आप कह रहे हैं सरकार ने पत्थरबाजों के खिलाफ कार्रवाई की, वो गलत है। आप उसको राजनीतिक रंग दे रहे हैं। अभी तक आप बोल रहे थे कि केवल मुसलमानों पर कार्रवाई हुई। मैंने आपके सामने उदाहरण दिया कि यदि रेप के केस में कोई परिवार शामिल था तो उस हिंदू परिवार के भी मकान को हमने तोड़ा। 2 दिन पहले भोपाल में एक घटना हुई थी, उसमें भी हमने मकान को तोड़ा था। हम हिंदू मुसलमान देखकर कार्रवाई नहीं कर रहे। चलिए, आप जवाब दीजिए सैयद हसीम वकार, फिर मैं आचार्य जी के पास जाऊंगी। सैयद हसीम वकार, हिंदू मुस्लिम कोई नहीं देखता, कल को आप बताइए किस हिंदू ने क्राइम किया है, विश्वास सारंग जी उस पर बुलडोजर चलवाएंगे। जी देखिए, विश्वास सारंग जी की हिम्मत नहीं है। विश्वास सारंग जी और इनके मुख्यमंत्री जी एक फिक्स एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूं विश्वास सारंग साहब से कि खाली आप ये बता दिए कि ये तय कौन करेगा कि अपराधी कौन है। ये आप तय करेंगे, आपकी पुलिस तय करेगी, या जज साहब तय करेंगे? जज साहब को तो आप लोगों ने घर बिठा दिया है और मुझे लगता है कि अब आप लोग कोर्ट में भी ताला डलवा देंगे। अब इंस्पेक्टर साहब और सीओ साहब तय कर देंगे, सब वही तय कर देंगे, वही गिरफ्तारी करेंगे, वही मुकदमा होगा थाने में, वही फैसला हो जाएगा, वही सब कुछ हो जाएगा। क्या आप हुकूमत कर रहे हैं सर? आप रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं और मैं समझता हूं सबसे ज्यादा रूल जो है वो आप तोड़ रहे हैं। बताइए, जवाब दीजिए मंत्री जी। जी, आपकी सरकार की बात नहीं हो रही, हम करौली की बात भी कर रहे हैं, राजस्थान की बात भी कर रहे हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य है, हम राजस्थान की बात भी कर रहे हैं, बिना किसी जानकारी बैठे हुए हैं। हमारे एआईएम के प्रवक्ता महोदय यहाँ पर उनके स्पोक्स पर्सन बैठ गए हैं। वो ये आपने खुद ने देखा, यहाँ पर वीडियो दिखाया जा रहा है कि किन लोगों ने पथराव किया। जिनने पथराव किया वो गिरफ्तार हुए। गिरफ्तार होने के बाद जब उनकी प्रॉपर्टीज को देखा गया तो वो इलीगल प्रॉपर्टी थी, बिना किसी परमिशन की वो प्रॉपर्टीज थी। उनको नेस्तनाबूद किया गया, बुलडोजर चलाया गया। मैं फिर ये कहना चाहता हूं, जो भी कार्रवाई हुई है संवैधानिक दायरे में हुई है, हमने कोई असंवैधानिक काम नहीं किया। फिर मैं ये कह रहा हूं, आचार्य जी, वीडियो में दिखाई दे रहा है, सरकार कह रही है पहले नोटिस भेजा गया था, इलीगल कंस्ट्रक्शन है, तो फिर बुलडोजर पर नफरत और दहशत सवार है, क्यों कह रहे हैं राहुल गांधी जी? किसकी नफरत और किसकी दहशत? देखिए,
और पदमजा जी, मैं सबको सुन रहा था, मुझे थोड़ा सा अनइंटरप्टेड, मैंने किसी को इंटरप्ट नहीं किया क्योंकि बहुत ही जिम्मेदारी से आप बहस करा रही हैं, बहुत सेंसिटिव इशू है। पहली बात यह है कि विश्वास सारंग जी भाजपा के प्रवक्ता के रूप में यहाँ नहीं बैठे हैं, एक मिनिस्टर भी हैं वो केवल, और मिनिस्टर एक संवैधानिक जिम्मेदारी का निर्वहन करता है। वो दो बातें कह रहे हैं, बड़ी फख्र के साथ कह रहे हैं, बड़े गर्व के साथ कह रहे हैं कि हमने बुलडोजर चलाया। बिल्कुल आप बुलडोजर चला सकते हैं, आपको सब कुछ ढाने का अधिकार है क्योंकि जनता ने आपको मैंडेट दिया। लेकिन सवाल पदमजा जी ये उठता है, अभी वो कह रहे हैं कि एक रेप के मामले में शामिल पाया गया, हमने उसका घर ढा दिया, एक दूसरे मामले में शामिल पाया गया, हमने उसका घर ढा दिया। इस देश के अंदर एक कानून व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है, और एक्स्ट्रा जुडिशियल फैसला लेने की, सजा देने की किसी को भी अधिकार नहीं है। अगर कोई रेप करता है, रेप के लिए एक सजा मुकर्रर है। अगर मर्डर करता है, मर्डर के लिए सजा मुकर्रर है। अगर कोई किसी के खिलाफ धार्मिक उन्माद फैलाता है तो उसके लिए सजा मुकर्रर है। लेकिन किसी के घर को ढाने का अधिकार आपको किसने दे दिया? अगर आप भाजपा के सिर्फ प्रवक्ता होते तो ये बात चलती, लेकिन एक मिनिस्टर होकर के नेशनल टेलीविजन पर पदमजा जोशी जैसे निर्भीक पत्रकार के सामने आप ये बात कह रहे हैं कि हमने रेप में एक शामिल था और वे रेप के लिए तो सजा मुकर्रर है, कोर्ट फैसला करेगा, इट विल बी डिसाइड बाय कोर्ट ऑफ। तो ये रूल ऑफ लॉ की बात है। आप ये गर्व से कह रहे हैं कि आपने किसी के घर को ढा दिया, पहली बात। दूसरी बात, अब सवाल उठता है कि दंगों का। भाई दंगा मध्य प्रदेश में हो रहा है, दिग्विजय सिंह जी ने ट्वीट कर दिया, दिग्विजय सिंह ने वो ट्वीट डिलीट कर दिया, तो दंगा हुआ तब दिग्विजय सिंह जी ने ट्वीट किया ना। अब दिग्विजय सिंह जी ने उस ट्वीट को डिलीट कर दिया, उसके बाद भी दिग्विजय सिंह जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, तो दिग्विजय सिंह जी का घर भी ढा दीजिएगा, बुलडोजर लेके जाइएगा। आचार्य जी, आप क्यों दिग्विजय जी के शुभचिंतक हैं, आप उनका घर क्यों ढहवा रहे हैं? मंत्री साहब बैठे हैं, आप यहाँ सिफारिश कर रहे हैं कि दिग्विजय जी का घर ढा दीजिए। विश्वास सारंग जी, पद्मजा जी, मैं माना कि कांग्रेस में कई विरोधाभासी कैंप्स हैं, बट ऐसा तो मत कीजिए, टीवी पे आपने ऐसी सिफारिश कर दी। पद्मजा जी, मैं जोड़ना चाहता हूं। पद्मजा जी, मैं विश्वास सारंग जी को कहना चाहता हूं, दिल पे हाथ रख के कह दें कि दिग्विजय सिंह जी से इनके तो बहुत अच्छे रिश्ते हैं, वो तो इन्हें बहुत स्नेह करते हैं, तो उनको क्यों छोड़ रहे हैं? अगर दिग्विजय सिंह जी का भी एफआईआर करने पे मेरा प्रश्न क्या है? प्रश्न है श्रीराज नायर कि भले से ही इट विल बी अ रेप अक्यूज्ड और इट विल बी समबडी अक्यूज्ड ऑफ स्टोन पेल्टिंग, दिस काइंड ऑफ कैंगरू जस्टिस कैन नॉट बी टॉलरेटेड। घर ढाया जा सकता तो दिग्विजय जी का भी ढा दीजिएगा। श्रीराज नायर, टुमारो कमलनाथ विल बी इन गवर्नमेंट, आपका घर ढा देंगे, विश्वास सारंग का घर ढा देंगे। श्रीराज नायर, मेरा घर अगर इलीगल बना होगा तो बेशक ढहा दें, मैं उसका स्वागत करूंगा। सी फर्स्ट ऑफ ऑल पद्मजा जी, लेट मी टेल यू नाउ, ये जो विक्टिम कार्ड जो इनके पास था उसकी स्पेंडिंग कैपेसिटी अब खत्म हो चुकी है। नाउ इनफ ऑफ प्लेइंग विक्टिम कार्ड, दे हैव बीन राइटिंग फॉर इयर्स टुगेदर, but one political parties like Congress, Samajwadi Party and other parties, they have been into appeasement and they have encouraged these rioters. But now times have changed. Now now the rule of law is prevailing. So we are absolutely welcoming the action of the Madhya Pradesh government. And you only in your initial address said that whatever is illegal is being demolished. And then definitely there is rule of law. इस देश में हमने अफजल गुरु और कसाब को भी ट्रायल का मौका दिया, जिन्होंने सरेआम ट्रायल का मौका नहीं दिया ना। अब तो बुलडोजर चल गया, अब ट्रायल क्या होगा? बुलडोजर तो चल गया, घर टूट गया, इनका ट्रायल क्यों नहीं हुआ? एब्सोल्युटली पदमजा जी, एब्सोल्युटली रेलेवेंट क्वेश्चन आपने नहीं। यहाँ पे मंत्री महोदय यहाँ मौजूद है, ये रूल ऑफ लॉ प्रिवेल किया है, हम इसका पूरी तरह से स्वागत करते हैं। और ये देश में ये एक सीख होनी चाहिए इन जिहादी एलिमेंट्स जिनका नंगा नाच चल रहा था, तांडव चल रहा था, राइटिंग सर, आप तो खुद ही कह रहे हैं अगर कसाब को भी 3 साल का ट्रायल मिला तो किसी का घर टूटने के पहले ट्रायल क्यों नहीं मिला विश्वास जी, जब कसाब को भी हमने ये लग्जरी दी? मैं वही बात बोल रहा हूं। मैंने अपने वक्तव्य के शुरुआत में ही कहा था कि मध्य प्रदेश की विधानसभा में हमने एक कानून पास किया है, प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड रिकवरी ऑफ डैमेज। पद्मजा जी, मुझे 15 सेकंड कानून है, प्लीज। एक कानून है, मैं यही कह
कह रहा हूं, अभी बड़ा आश्चर्यचकित तरीके से जिस प्रकार से आचार्य जी ने इस पूरे मामले को हंसी में उड़ा दिया। आप रेप की घटना को हंसी में उड़ा रहे हैं। आपने कितने आसानी से बोल दिया, आपने कितने आसानी से बोल दिया कि रेप किया है तो उसको तो सजा मिल जाएगी। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि आचार्य जी जैसे लोग जो कि भगवा धारण करके यहाँ पर बैठे हुए हैं। I would request for 30 seconds more. I was not given मुझे 2 मिनट में मैं अपनी बात कंप्लीट करूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि जो हमारा कानून है उसके दायरे में हमने ये कार्रवाई की है और ये हमारे कानून में इंगित है कि कोई भी व्यक्ति यदि इल्लीगल काम करता हुआ, धार्मिक उन्माद फैलाता हुआ, दंगा करता हुआ, इल्लीगल काम करता हुआ, माफियागिरी करता हुआ पाया जाएगा तो उसको हम जेल के पीछे तो भेजेंगी। यदि उसकी Acharya ji, this has been passed as a law before you respond to Acharya ji, and then Shri Raj Nair. Yes, Acharya Pramod Krishnan. पदमजा मैं विश्वास सारंग जी को बताना चाहता हूं, मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि आप जिसने रेप किया है, जो रेप की घटना में शामिल, उसे सजा मत दो। मैंने सिर्फ ये कहा कि रेप की एक सजा मुकर्रर है कानून के अंदर, आप उसका भी घर नहीं ढा सकते हो। दूसरी बात विश्वास सारंग जी सुनिए, पूरा करने दीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला। दूसरी बात पदमजा, अगर 1 साल बाद सरकार बदल जाती है और कांग्रेस की सरकार आती है और विश्वास सारंग जी का घर ढाने को चल देती है, मैं उसका भी विरोध करूंगा। मेरा सवाल यह है विश्वास सारंग जी से कि अगर आपको लगता है कि कोई जिहादी है, कोई आतंकवादी है, बिल्कुल देशद्रोही है, उसका घर ढाइए, खूब ढाइए। लेकिन आपने तो कंप्यूटर बाबा शिवराज जी की सरकार में मिनिस्टर थे तो उनका इंदौर में आश्रम बनवाया था, वहां की तमाम नगर पालिकाओं ने बनवाया था, सरकार ने बनवाया। जब वो आपकी पार्टी छोड़ के कांग्रेस में आ गए, आपने तो कंप्यूटर बाबा का आश्रम ढा दिया। तो बुलडोजर का इस्तेमाल कहां कब करना है ये आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, जो आपके साथ है आप उसका मकान बनवाते हो, जो आपके साथ नहीं है आप उस पर बुलडोजर चलवाते हो। वाह, बहुत अच्छा, बधाई हो आपको, धन्य है आप। आचार्य जी यहाँ पर खेत की बात हो रही है, ये खलियान पर पहुंच रहे हैं। मुख्य मुद्दा यह है कि आपने एक बार ये नहीं बोला कि राम नवमी के जुलूस पर जिन्होंने पत्थर फेंका वो गलत है। एक बार तो बोल दीजिए। आप कलगी महाराज के अवतार की बात करते हैं, एक बार तो आप ये बोल दीजिए कि राम के जुलूस पर जिसने पत्थर फेंका है वो गलत है। एक बार तो बोलिए कि दिग्विजय सिंह ने गलत ट्वीट किया था। एक बार तो बोलिए कि कांग्रेस हिंदू विरोधी है। एक बार तो बोलिए कि कांग्रेस राम के खिलाफ बात करती है। एक बार तो बोलिए कि हिंदू मतावलंबियों, हिंदू धर्मावलंबियों के खिलाफ है कांग्रेस। मुझे अच्छा लगेगा। आप कलगी महाराज के अवतार की बात करते, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं आचार्य जी, परंतु आप ऐसा कुछ मत करिए। विश्वास सारंग जी देखिए, विश्वास सारंग जी, आप टाइम्स नाउ पर बैठ करके देश को भ्रमित मत करिएगा। आप बहुत जिम्मेदार मिनिस्टर हैं और मैं आपका सम्मान करता हूं, मैं आपको इसलिए भी करता हूं। जहां तक सवाल है, सुनिए, जहां तक सवाल है कांग्रेस पार्टी का, सुनिए मेरी बात सुनिए। आप लॉजिकल बात करिए ना, आप लॉजिकल बात करिए। मंत्री जी आप लॉजिकल बात करिए, सारंग जी आप लॉजिकल बात करिए। मैंने 2 सवाल किए। विश्वास सारंग जी मेरी बात सुनिए, सिंपल बात ये है, जस्ट आचार्य जी, सिंपल बात ये पूछी जा रही है that people who were quiet on the pelting of stones in a religious procession today when the action is being taken are calling it Islamophobia। आप लॉ को भले से ही क्वेश्चन कर सकते हैं, पर इसलिए इस्लामोफोबिया किधर से आ गया? किसी के ऊपर पत्थर मारे वो हिंदू फोबिया नहीं है, किसी के ऊपर एक्शन ले तो वो इस्लामोफोबिया है। पहली बात पद्मजा, विश्वास सारंग जी ने मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने उनसे ये कहा कि अगर दिग्विजय सिंह जी ने गलत काम किया है तो बिना कोर्ट के फैसले के उनका घर भी ढा दो, तब तो लगेगा आपने सबको समान But the politicization and the very convenient spinning of it as Islamophobia and the sadistic torture of a Muslim community मुझे जवाब देने का मौका ही नहीं दे रही हैं आप। Very quickly, Shriraj Nair wants to ask you. Shriraj Nair wants to ask a question to Asayed Asim Waqar. Shriraj Nair, आप देने का मौका नहीं दे रहे हैं। Shriraj Nair, देखिए आचार्य प्रमोद किशन जी चीख के कहते हैं कि कांग्रेस की इमेज मुल्ला पार्टी की हो गई, इसीलिए ही कांग्रेस का सुपड़ा साफ पूरे देश भर हो रहा है। वह स्वयं कहते हैं हर जगह पर। आज देश भर में रामनवमी के समय देश भर में हजारों की संख्या में शोभा यात्रा निकली। पथराव किसने किया?
मैं यहां मुंबई में बैठा हूं, यहां पर भी कई जगह पर शोभा यात्रा निकली। पथराव करने वाले, अलगाव फैलाने वाले, दंगा फैलाने के पक्ष में ये लोग खड़े हो जाते हैं और विक्टिम क्राई करते हैं। अब भी इनको सीख लेनी चाहिए। मध्य प्रदेश में जो भी सरकार ने किया, इसका पुरजोर स्वागत करते हैं। यही मापदंड पूरे देश भर में होना चाहिए। दंगाइयों के लिए ये बहुत बड़ी सीख है। दंगाइयों की हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि देश के अंदर दंगा फैलाए, निहत्तों की जान जाए, निहत्तों के साथ खेले और देश के कानून की धज्जियां उड़ाए। सैयद असीम वकार, विक्टिम कार्ड कहा जा रहा है। अगर आप एक्शन को प्रोटेस्ट करते हैं वो विक्टिम कार्ड है। सैयद असीम वकार, देखिए किस्सा सुना दूं आपको। सैयद वकार जी, एक आप ही की बिरादरी की एक पत्रकार हैं, आप ही की बिरादरी की एक पत्रकार हैं, नोएडा रहती हैं। हाँ। उन्होंने एक ट्वीट किया कल। अच्छा। उसको मैंने रिट्वीट भी किया है। ओके। न्यूज 18 हिंदी के एक वर्कर हैं, पत्रकार हैं, सौरभ शर्मा। वो नोएडा में रहते हैं। सुपरटेक की बिल्डिंग है, उसमें उनकी बिल्डिंग में जो सोसाइटी थी उसमें जगराता के नाम पर लाउड स्पीकर बहुत तेज तेज गाने बज रहे थे। सौरभ शर्मा साहब ने 112 पर कॉल की पुलिस को और बुलाया कि साहब गाने बंद करा दिए, डिस्टर्ब हो रहा है। पुलिस ने उनसे कहा आप मौके पे पहुंचिए, हम भी पहुंच रहे हैं। जब वो भी पहुंचे और पुलिस भी पहुंची, सर तो मैं किसी और चैनल के पत्रकार के बारे में बात नहीं करना चाहती। आयोजक थे। हम सब जानते हैं उस इंसिडेंट के बारे में। आपका पॉइंट क्या है? मैं घटना की बात कर रहा हूँ। घटना की बात कर रहा हूँ। अरे वकार, क्योंकि मैं किसी को टिप्पणी नहीं करना चाहती। जहां तक नोएडा पुलिस का सवाल है, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है अबाउट द पर्सन बीइंग इनएब्रिएटेड एंड मिसबिहेविंग विद पीपल। बट अगेन लाइक आई सेड, आई डू नॉट वांट टू कमेंट ऑन इंडिविजुअल्स। देयर आर ओनली वर्जन्स। व्हाट इज योर पॉइंट? प्लीज किसी की व्यक्तिगत बात मत कीजिए, क्योंकि मैं किसी और की व्यक्तिगत जिंदगी पर टिप्पणी नहीं करना चाहती। घटना सुन लीजिए। घटना मुझे पूरी पता है। मैंने पूरा स्टेटमेंट पढ़ लिया, पत्रकार के साथ पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया। आपकी बिरादरी के पत्रकार को देशद्रोही कहा गया, अरे आप पाकिस्तानी कहा गया, और कहा इसको मार दो, इसको जान से मार दो। सर एफआईआर हुआ है उस मामले में, एफआईआर हुआ है उस मामले में कि वहां पर अभद्रता की गई। बट अगेन लाइक आई सेड, इट इज अनफेयर कि किसी के बारे में हम बात करें और वो खुद यहां पे ना हो। एक पुलिस का स्टेटमेंट है, एक उनका स्टेटमेंट है, क्रॉस एफआईआर हुई है। प्लीज किसी की इंडिविजुअल बात यहां ना करें। आप ये बताइए कि जहां तक बुलडोजर का सवाल है, आपके ऊपर इल्जाम है, आप विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं। प्लीज इसका जवाब दीजिए। नहीं, हमारे पर इल्जाम क्या है? और जो सारंग साहब बैठे हुए हैं, ये कंफ्यूज सालों से विक्टिम कार्ड खेलते जा रहे हैं। पहले तो आप ये तय कर लीजिए कि आपने बुलडोजर चलाया कैसे। आज तक अभी आपने कहा कि साहब स्टोन पेल्टिंग हुई, फिर आपने कहा कि अवैध निर्माण था, इलीगल निर्माण था। अरे आप उसका खंडन तो करिए। आपने कहा नोटिस पहले दी जा चुकी थी, कम से कम। तो अगर आपको नोटिस पहले दी थी, इलीगल निर्माण था, तो आप इसको स्टोन पेल्टिंग से क्यों जोड़ रहे हैं? Okay. I'm going to end it over here. The more specific of each case, actually, we are going to talk about that tomorrow.